Student, in this video I will tell you different types of angles and their types. So what is angle? When angle or two rays originate from the same endpoint or from the common point, then angle will be formed. Like here common point is A and AC and AB are the two arms. So like this is the one ray, another ray is this. So this here angle is formed. Okay, common point is must, and the common point is called vertex. Here A is vertex. And the types of angle, so first one is acute angle. First one is acute angle. In acute angle, see this x greater than 0 and less than 90. Like 49 is the acute angle because it lies between 0 and 90. Like 71 is the acute angle, it lies between the 0 and the 91. So always 0 between the angles 0 and 90 is called acute angle. And right angle is exact equal to 90 degree, exact 90 degree. And obtuse angle lie between 90 and 180. It means greater than 90 and less than 180. Means 91 is the obtuse angle. And like 179 is the obtuse angle because it lie between 90 to 180. So this is obtuse. You can make any this. Okay, like 150 is the obtuse angle. Next one is reflex. This is reflex angle is greater than 180 and less than 360. Like 250 is the reflex angle. 270, 310, all are reflex angle. Reflex angle more than 180 and less than 360. Next one is straight angle. Straight angle is exact equal to 180, like a straight line. So here one angle is formed, like one ray is there, another ray is there. So these angle 180 degree. Okay. Next one is complete angle. Complete angle means full angle, means a line is rotate completely, like this line is rotate completely. When a line is rotate completely, then it form complete angle, and the value of is equal to 360 degree. Okay student. Another type of angles is complementary angles. Complementary angles, like when there is two angles whose sum is 90 degree, then the angles are called complementary angles. Like 30, 60, 45, 37, 53, 67, 23, means their sum must be equal to 90 degree. So if you know the one angle, then you can find out the another angle by subtracting it from 90. Like एक एंगल आपको पता है 50 डिग्री, सो इसका कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है. कॉम्प्लीमेंट तो आप क्या करेंगे, 90 माइनस 50 इक्वल टू 40 डिग्री आ जाएगा. मीन्स अगर आपको पता है दो एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, तो अगर एक पता है तो दूसरे को 90 में से माइनस करके निकाल लेते हैं. देन अनदर इज सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री जैसे कॉम्प्लीमेंट्री का सम 90 होता है, वैसे ही सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 होता है. मीन्स अगर आपको एक एंगल पता है, लाइक मैं कह दूं एक एंगल 120 है, तो दूसरा कितना होगा, 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री. दूसरा कितना बन जाएगा, 60 डिग्री. सो जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिए हैं 112, 68, 120, 60, 150, 130, 11, 169. ये सारे एंगल्स का सम कितना होगा, 180. एक एंगल आपको पता होगा, दूसरा 180 में से माइनस करके कैलकुलेट कर लेंगे. अनदर टाइप ही एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट एंगल क्या होता है, मतलब पास का एंगल. जैसे मान लो ये एंगल कोई बन रहा है और ये एक वर्टेसिस हो गई, तो ये जो एंगल और ये जो एंगल है ये
एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कॉमन होता है, सेम वर्टेक्स होती है, वर्टेक्स का मतलब लाइक हेयर ओ, सेम वर्टेक्स होती है और एक कॉमन आर्म होगी जो दोनों के बीच में से होके जाएगी, तो ओ भी यहाँ पर कॉमन आर्म है, तो ये एंगल को हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। बच्चों नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ लाइंस। तो देखो यहाँ पर अगर ऐसे लाइन होती है और उसको कट कर रही होती है, कहीं भी कट कर दे, ठीक है, जैसे मान लो ये कोई लाइन है, यहाँ पे कट कर दे, अगर दो लाइन आपस में कट करती हैं उनको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसे मान लो यहाँ पर ए बी कट कर रही है सी डी को, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितने एंगल बनते हैं, 4 एंगल्स बनते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में 4 एंगल बनते हैं, 1 2 3 4, और जिसमें जो अपोजिट एंगल होते हैं लाइक एंगल 1 और एंगल 3 ये इक्वल होते हैं, और एंगल 2 एंगल 4 भी इक्वल होगा, 1 बराबर होगा 3 के, 2 बराबर होगा 4 के। इसको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट। क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट। फिर अगली लाइंस टाइप्स है, देखो अगर एक लाइन के ऊपर ही लाइन होती है, लाइक ए बी कोई लाइन है ए बी और इसके ऊपर ही कोई दूसरी लाइन है सी डी, तो ऐसी लाइंस को हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। और तीसरा टाइप है अगर एक लाइन जस्ट इक्वल डिस्टेंस पर हो थ्रू आउट द सेम, ठीक है, तो ऐसी लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है हमेशा इक्वल रहेगी, आप कहीं भी चेक करेंगे तो इक्वल ही रहेगी। और इनकी एक प्रॉपर्टी भी होती है, दे नेवर मीट टू ईच अदर, मतलब कभी भी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, सेम एंगल पे जाती रहेंगी दोनों और कभी भी नहीं मिलेंगी। और अगर ये लाइन मिलेंगी तो ये फिर पैरेलल नहीं बन जाती हैं, ये इंटरसेक्टिंग बन जाती है। ओके स्टूडेंट।